students and viewers. Welcome in Zahra's classes. Myself Dr. A. Zahra, and today we will continue with the next portion. Previously we did vegetative propagation which were done by natural method. Natural vegetative propagation was done in previous lecture. In this lecture we will do the vegetative propagation which is done by artificial means. So students, let's get ready for the lecture. So first of all we will see asexual reproduction, artificial method. What is artificial method of vegetative propagation? This method is also used besides the vegetative propagation which is done by natural methods. As you previously we saw various methods of natural methods of vegetative propagation. Now here we will see artificially how this is done by farmers, by various horticulturists and by various technicians so that we get better yield of the plants. This is basically done in flowering plants as well as in the plants that produce fruits. So artificial propagation, as you see, is again of three types. Artificial propagation in plants include four main types, that is cutting, layering, grafting, and the last one is micro propagation, which is also known as tissue culture. This is done in laboratory. Some part is done in laboratory, whereas the cutting, layering, and grafting, you can see it is done in field. But today in this lecture we will include cutting, layering and grafting. So students, let us move with the first part, that is cutting, and how it is done and in which plants it is done. So it is cutting. It is very common method of vegetative propagation. Okay, generally you see during the rainy season various stems of various flowering plants, they are cut and then they are sowed, or they are sown in the soil for proper vegetative propagation. And this is the commonest of all. This is the commonest vegetative propagation, and plants such as roses, coleus, bougainvillea and sugarcane can be cut at the points of nodes. As you know, if this is a stem, then there are nodes and internodes. So they are cut at this point of nodes and internodes to produce new plants. So it is cut there, and between these stems are cut and then they are sown and they produce a new plant. Now these points are placed in moist soil. So what happens when these cut portions, they are placed in moist soil in a particular angle, adventitious roots develop from them and they start developing into a new plant. New plant begins to grow. So what you have to remember is adventitious roots as well as the points of nodes and internodes. These things are taken into consideration during cutting the part or during cutting of a particular plant for this propagation. Okay. So now coming on to the cutting part. Cutting is again, you can see there are many types of cutting techniques, students. बहुत तरह की cutting techniques होती हैं, and these cutting techniques, they are grouped into three categories. Basically the part which is used for cutting, these parts are stem, लीफ को भी हम कटिंग में ले सकते हैं, एंड रूट कटिंग. तो ये तीन पार्ट जो होते हैं प्लांट के, बेसिक तीन पार्ट, स्टेम, लीव्स एंड root, they are used for during cutting, and they are used by farmers. And when are they used? During the end of flowering season or growing season. जो फूल देने का समय होता है, फ्लावरिंग सीजन होता है, उस समय इनको काटा जाता है. चाहे स्टेम रीजन से काटा जाए, चाहे लीफ पोर्शन से या रूट पोर्शन से इनकी कटिंग होती है और नए प्लांट्स उससे प्रोपोगेट होते हैं. स्टेम कटिंग किस में की जाती है? स्टेम कटिंग इंक्लूड्स हार्ड वुड, वो पौधे, वो प्लांट्स जिनके स्टेम्स जो हैं टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, या सेमी हार्ड, बहुत टफ नहीं होते और बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होते, या फिर जिनके वुड सॉफ्ट होते हैं. तो इन कैटेगरीज के प्लांट्स को यूज़ किया जाता है और उनकी स्टेम्स को कट किया जाता है नोड और इंटरनोड के पॉइंट्स पे, और फिर इनको कटिंग को गाड़ा जाता है मिट्टी में, और जिससे कि नए प्लांट में ये डेवलप होते हैं. दूसरा टाइप जो आता है कटिंग का, वो है लीफ कटिंग, जो कि लीफ ब्लेड, जिसका लीफ का पत्ते का काटा जाता है, या वेन्स की तरफ से अगर ये लीफ है तो ये इसको हम ब्लेड कहते हैं, और फिर या तो फिर लीफ मार्जिन, लीफ वेन कटिंग कहते हैं.
लीफ वेन जो है इन वेन्स के से कट करके, या लीफ की जो बड है, कोपल है, उसको कट करके, लीफ एज को कट करके नए प्लांट में प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोपोगेट किया जाता है। और तीसरी कैटेगरी जो आती है बच्चों वो है थर्ड कैटेगरी, जिसको आप रूट कटिंग कैटेगरी कहते हैं। ये यहाँ पे फिगर्स में आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 2 फिगर्स पुट किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फिगर है स्टेम कटिंग का, कि देखिए इस तरह से कट हो रहा है एक पर्टिकुलर पोर्शन से, और उस कट पोर्शन को जो है लगा दिया जा रहा है, नोड इंटरनोड के पोर्शन पे है, और इसको विथ कुछ पोर्शंस इसके स्टेम के लगे हुए हैं, और इसको जो है मिट्टी में कंपोस्ट के साथ इसको गाड़ दिया जाता है, लगा दिया जाता है, और इससे एक नया प्लांट प्रोपोगेट होता है। सो दिस इज द कटिंग डन बाय यूजिंग स्टेम। Here you can see, this is one diagram made by me, and here you can see the stem root cutting. The plant is rooted under the soil, the root shows adventitious part, and this particular portion is cut here, as you can see, and this particular portion is cut, and again you will see a new plant developing from here. So here this is another type of cutting which is done in roots. So students, basically cutting is done in from all the 3 parts, that is using stem, leaf और root, कि कोई भी इन 3 पार्ट्स को यूज़ करके प्लांट्स को प्रोपोगेट किया जाता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियली आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसको कट करके इसको अपने सहूलियत के हिसाब से अपनी जगह पे इसको प्रोपोगेट करते हैं, that's why it is artificial propagation. Now coming on to the next part, that is next type of plant propagation, and that is layering. What is layering actually? Layering क्या है? Layering is a form of rooting and cuttings where adventitious roots are produced. ठीक है ना, ये वो तरीका है जिससे कि रूट्स को आप कट करते हैं, और वो वहाँ से कट करते हैं जहाँ से कि, या किसी भी डेवलपिंग शूट को भी आप कट करते हैं, और वहाँ जहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये स्टेम जो है अभी भी अपने मदर प्लांट से अटैच रहती है, लेकिन उसमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं। उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को, उस पर्टिकुलर टेक्निक को हम कहते हैं लेयरिंग। दिस लेयरिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न कटिंग एंड ग्राफ्टिंग प्रोपोगेशन। लेयरिंग अब उतना जो तरीके से जो करते हैं, लेकिन अभी भी लेयरिंग जो है वो रिप्लेस कर दी गई है, कटिंग, मॉडर्न टाइप ऑफ कटिंग और ग्राफ्टिंग प्रोपोगेशन से रिप्लेस हो गई है। सम डिफ़िकल्ट टू रूट वुडी प्लांट्स आर स्टिल प्रोपोगेटेड। अभी भी होती है लेयरिंग, लेकिन जो बहुत डिफ़िकल्ट है, जिनसे कि रूट से, या बहुत वुडी प्लांट हैं जिनको आप और बाकी टेक्निक से नहीं कल्टीवेट कर सकते, लेकिन इस मेथड से कल्टीवेट करते हैं, तो उनमें जो प्रोपोगेशन होता है वो लेयरिंग से होता है। जैसे कि रास्पबेरी हो गई एग्जाम्पल, जैस्मिन हो गया, मैग्नोलिया हो गया, और इनकी स्टेम्स जो हैं इनको बेंट की जाती हैं और इनको मिट्टी में गाड़ी जाती हैं, और इसके बाद उस बेंट स्टेम से आप देखते हैं कि एक नया प्लांट जो है वो प्रोपोगेट होता है। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द figure showing you the process, the technique. See, this is the plant, this is the as you can say parent plant, and one of the stems, see this stem is bent, it is again it is bent, and it is taken into the soil, it is dumped into the soil, और इसमें मिट्टी में उसको एक हिस्सा, कुछ पोर्शन उसका गाड़ दिया जाता है और थोड़ा सा पोर्शन उसका छोड़ दिया जाता है। आप देखिए कुछ समय के बाद इसमें एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होने शुरू होते हैं, और जैसे ये रूट्स डेवलप होते हैं, यहाँ पे इसका जो नया शूट है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जब ये नया शूट डेवलप होता है तो इसके मदर प्लांट से इसका कनेक्शन कट कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेयरिंग। और ये जो पोर्शन है, आप देखो बच्चों, जो यहाँ पे ये पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं लेयर, इसको लेयर कहते हैं, जो कि पेरेंट प्लांट से अटैच होता है, लेकिन उससे एक नया प्लांट डेवलप होता है, उस पोर्शन को हम कहते हैं लेयर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेयरिंग हर प्लांट में नहीं होता, सिर्फ उन प्लांट्स में होता है, जैसे रास्पबेरी, जैस्मिन, मैग्नोलिया, और इनमें जो है बेंट करते हैं स्टेम्स को, बरी करते हैं सॉइल में, उसको गाड़ते हैं, धसाते हैं, और उससे एक नया प्लांट जो है वो डेवलप होता है। एडवेंटिशियस रूट डेवलप होती है। आप देखिए एडवेंटिशियस रूट आपने कटिंग में भी देखा था, इसमें भी है एडवेंटिशियस रूट डेवलप होती हैं, और ये तब जब डेवलप हो जाती हैं तो ये पेरेंट प्लांट से इस पर्टिकुलर पोर्शन को डिटैच कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द स्टेम इज नोन एज लेयर, एंड लेयर इज रूटेड स्टेम following detachment from the plant. This is actually what
लेयर क्या है, अगर लेयर की डेफिनेशन देनी है तो ये क्या है, इट इज़ अ रूटेड स्टेम, एक स्टेम जिसमें रूट है, इट इज़ अ रूटेड स्टेम एंड विच इज़ डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, which is removed or which can be detached from the parent plant and the stem can then develop into a new plant। अब देखिए इसमें एक नया प्लांट डेवलप हो रहा है। लेकिन ये लेयरिंग में भी आप देख सकते हैं कि कुछ कंडीशंस लगते हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं लेयरिंग के लिए, उसको हम पढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर लेयरिंग, देखिए लेयरिंग इज एनहांस्ड बाय वुंडिंग द स्टेम वेयर द रूट्स आर टू फॉर्म। अब ज़्यादातर क्या होता है, जैसे ये आपका एक पेरेंट प्लांट से स्टेम निकला, इसको आपने बरी किया, तो जब आपने इसको बरी किया तो इस जिस पोर्शन से आपको लगता है कि यहाँ से रूट निकलना है, तो इस पोर्शन को आपको थोड़ा सा वुंड करना पड़ेगा, यानी कट करना पड़ेगा, इसको छीलना पड़ेगा। जब ये छील देते हैं तो यहाँ से एडवेंटिशियस रूट बहुत आसानी से निकल जाता है। तो पहला कंडीशन क्या है, वुंडिंग करना, उसको छीलना। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, देयर शुड बी एरेशन एंड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ, इसका ये मतलब है कि कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, यानी यहाँ पे पानी होने की ज़रूरत है, मॉइस्चर होना है, गीली मिट्टी होनी है, बहुत ज़्यादा गीली नहीं, नम मिट्टी होनी है, और प्लस जो आप मिट्टी इसके ऊपर डालेंगे तो इस तरह से डालिए कि प्रॉपर एरेशन हो, उसमें गैप्स हों। तो ये दो कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं जिससे कि आपका लेयर्स जो हैं वो आराम से डेवलप हो सके। और इसमें अब आप देखते हैं कि लेयरिंग जो है वो कई प्रकार की होती हैं, जिसकी कि कुछ पार्ट्स मैंने इसमें दिए हैं आपके बुक में, कुछ हैं कुछ नहीं है, लेकिन दिस इज ओनली, दिस वीडियो इज मेड ओनली टू इम्प्रूव और टू इंक्रीज द नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर टेक्निक्स। सो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये लेयरिंग में जो टाइप ऑफ लेयरिंग हैं वो है आपके सिंपल लेयरिंग, कंपाउंड लेयरिंग जिसको आप सर्पेंटाइन लेयरिंग भी कहते हैं, टिप लेयरिंग, माउंड लेयरिंग as well as air। Simple layering as you can see, it is very much similar with a single layer, you can see here single layer। So by bending a low growing flexible stem to the ground, any stem that is very much flexible, जो बहुत flexible है और जो बहुत नीचे लेवल पे ग्रो कर रही है, उसको जो बेंड हो सकती है उस स्टेम को लिया जाता है। and cover part of it with soil, leaving the remaining 6 to 12 inches above the soil। तो बाकी पार्ट को उस स्टेम के कवर कर दिया जाता है मिट्टी से, और इतने 6 to 12 इंचेस का पोर्शन जो है वो छोड़ दिया जाता है मिट्टी के ऊपर और कवर करके छोड़ा जाता है। बेंड द टिप इनटू वर्टिकल पोजीशन एंड स्टेक इन द प्लेस। तो जो टिप है उसको टिप को बेंड वर्टिकल पोजीशन पे, ये जो टिप है उसको एक वर्टिकल पोजीशन पे लाया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। और आपको ये पता है कि क्या करना है इसमें, जिस जगह पे ये एडवेंटिशियस रूट को ग्रो होना है वहाँ पे आपको वुंडेड करना है। एंड वुंडेड द लोअर साइड ऑफ द बेंट ब्रांच में ऑल्सो इंड्यूस रूटिंग। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिंपल लेयरिंग में आप देख सकते हैं कि इसमें एक सिंगल लेयर होता है और बहुत फ्लेक्सिबल ब्रांच को इसमें यूज़ किया जाता है। अर्ली स्प्रिंग्स के टाइम में या कोई भी ब्रांच एक डोरमेंट ब्रांच है जो अभी बहुत ग्रो नहीं हो रही, उसमें फ्लावर्स नहीं हो रहे हैं, उस तरह के डोरमेंट ब्रांच को लिया जाता है, स्प्रिंग्स में किया जाता है, या तो लेट समर्स में किया जाता है जबकि एक ब्रांच जो है पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है क्लाइंबिंग रोजेज में आप ये काम करते हैं एंड रोडोडेंड्रॉन्स में। So here it was the example of simple layering as you have seen and the way it is done। Now coming on to next type, that is compound और serpentine layering। और ये serpentine layering भी simple layering जैसी है, लेकिन इसमें similar to simple layering but several layers are there। You make several layers that can result to form from a single stem। एक single stem है, आप इसमें देखिए ये एक सिंगल स्टेम है पूरी, और इस सिंगल स्टेम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई जगह पे आपने देखा है कि इसमें लेयर्स बने हुए हैं। ये इस तरफ कई जंक्शंस पे यहाँ पे आप देखिए कि लेयर्स बने हुए हैं। तो मल्टीपल लेयर्स एक सिंगल स्टेम से, एक सिंगल ब्रांच से बनता है, इसलिए उसको आप कंपाउंड या सर्पेंटाइन लेयरिंग भी कहते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेम टू द रूटिंग मीडियम इज बेंट एज इन सिंपल लेयर। जैसे सिंपल लेयर में आप देखते हैं कि बेंट होता है रूट, जिस स्टेम में रूटिंग होती है उसको बेंड किया जाता है, उसको मिट्टी में बरी किया जाता है, तो इसको कई जगह पे आप इसको बेंड करते हैं। सेक्शंस ऑफ द स्टेम्स आर ऑल्टरनेटली कवर्ड एंड एक्सपोज्ड। आप देखिए ऑल्टरनेटली ये कवर्ड हैं और ऑल्टरनेटली ये एक्सपोज्ड हैं। तो ऐसे एक ही स्टेम में ऑल्टरनेटली उसको दबाया जाता है, बरी किया जाता है, और एक पोर्शन जो है उसका एक्सपोज किया जाता है। तो ऐसे एक स्टेम में कई जगह पे कई सेक्शंस में उसको कवर किया जाता है और कई सेक्शंस में उसको एक्सपोज किया जाता है।
नाउ ईच सेक्शन शुड हैव एटलीस्ट वन बड एक्सपोज्ड एंड वन बड कवर्ड विद द सॉइल। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन में आप जो एक्सपोज्ड है उसमें भी एक बड होना चाहिए और जो धंसा है सॉइल में उसमें भी एक बड कवर्ड पोर्शन में भी होना चाहिए, और लोअर साइड का जो सेक्शन है वो क्या होना चाहिए, वुंडेड। द कंडीशन इज देयर फॉर प्रॉपर रूटिंग एंड दिस मेथड वर्क्स वेल फॉर प्लांट्स प्रोड्यूसिंग वाइन लाइक ग्रोथ, जिनकी वाइन लाइक ग्रोथ है, जो ट्विस्टेड ग्रोथ है, क्रीपर्स हैं तो सॉरी क्लाइंबर्स हैं, तो उसमें एग्जाम्पल आप देखते हैं ग्रेप्स एंड क्लेमेटिस का। तो कंपाउंड लेयरिंग हो गया चाहे सिंपल लेयरिंग हो गया, ये वन एंड द सेम है, लेकिन कंपाउंड में एज द नेम सजेस्ट कंपाउंड का मतलब यहाँ पे बहुत सारे सिंगल ब्रांच से सिंगल स्टेम से बहुत सारे लेयर्स को बनाया जाता है और उससे बहुत सारे प्लांट्स एक ही स्टेम से नए प्लांट्स डेवलप होते हैं। कंडीशन सेम होनी चाहिए, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, वुंडेड होना चाहिए, जो लेयर है उसका पोर्शन जहाँ से रूटिंग होनी है उसको वुंडेड करना चाहिए, छीलना चाहिए और उस पोर्शन को बिल्कुल पूरी तरह से कवर कर देना चाहिए मिट्टी से, और एक पोर्शन जो है उसका एक्सपोज होना चाहिए। तो ऐसे आपको मल्टीपल जगह एक ही स्टेम में मिल जाते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर लेयरिंग को कहा जाता है कंपाउंड लेयरिंग। Now coming on to the next type of layering that we have seen in the sequence, and that is tip layering. What is tip layering? As the name suggests, tip layering नेम आप देखिए टिप पे किस तरह से टिप लेयरिंग हो रही है, ये फिगर आप देख सकते हैं इसका। यहाँ पे आप देखिए इट इज़ सिमिलर टू सिंपल लेयरिंग, एकदम सिंपल लेयरिंग जैसा है। एक स्टेम जो है उसको भी आप पूरी तरीके से बरी करते हैं ग्राउंड के अंदर, और वो उसमें ग्राउंड का जो डेप्थ होता है वो 3 to 4 इंचेस डीप खोदा जाता है। द टिप ऑफ द शूट टू बी लेयर्ड इज इंसर्टेड, जो शूट का टिप इसमें है, उस वाले बाकी दो में आपने देखा था कि शूट का जो टिप है वो मिट्टी से ऊपर निकला हुआ है, सिर्फ कुछ पोर्शन उसका धंसा होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा टिप जो है वो पूरी तरीके से इसको इंसर्ट किया जाता है और सॉइल में कवर किया जाता है। द टिप ग्रोज डाउनवर्ड फर्स्ट, पहले वो थोड़ा सा डाउनवर्ड ग्रो होता है और फिर वो ऊपर की तरफ शार्पली ग्रो अपवर्ड्स। ठीक है, आप देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, पहले जो टिप है उसको धंसाया जाता है, वो डाउनवर्ड्स ग्रो होता है और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ ग्रो होता है। रूट्स फॉर्म एट द बेंड, तो जहाँ ये बेंड होता है उस जगह पे यहाँ पे रूट्स बनते हैं। द टिप लेयर इज रिमूव्ड एंड प्लांटेड इन लेट फॉल और इन अर्ली स्प्रिंग। अब ये जो है जब ये पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है, उससे नया प्लांट जब डेवलप हो जाता है, कर्व जब ऊपर पहुंचता है, नया प्लांट डेवलप होता है, तो उसको फिर अपने पेरेंट प्लांट से अलग करके उसको फिर से प्लांटेड किया जाता है सॉइल में। और ये कब किया जाता है, लेट फॉल या फिर आपके अर्ली स्प्रिंग सीजन में किया जाता है। और ये किन पौधों में करते हैं, रास्पबेरीज में, ब्लैक एंड पर्पल रास्पबेरीज एज वेल एज ब्लैकबेरीज में आपको इस तरह की लेयरिंग टिप लेयरिंग की जाती है। Now coming on to the next type of layering, and that is mound layering, जिसको stool layering भी कहा जाता है। और ये mound layering आप देख सकते हैं, इसका फिगर बिल्कुल एक माउंड इसमें बनता है। डन इन हैवी स्टेम्ड, जो स्टेम्स बहुत हैवी होते हैं, क्लोजली ब्रांच्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक झुंड में ब्रांचेस निकलते हैं, एक ब्रांच नहीं होती, उसमें कई सारे स्टेम्स निकल रहे होते हैं और बहुत झुंड होता है, बहुत टफ होते हैं। ऐसे श्रब्स में या फिर रूट स्टॉक्स में ये होते हैं। और द प्लांट बैक इज कट इनटू 1 इंच अबाउ द सॉइल सरफेस इन द डॉर्मेंट सीजन, वो सीज़न जिसमें कोई भी इसमें ग्रोथ नहीं होती, कोई डेवलपमेंट नहीं होता, डॉर्मेंट सीजन होता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रांचेस हैं, ढेर सारी ये जो गुच्छे हैं, ये मिट्टी की सतह से कुछ पोर्शन ऊपर यहाँ पे इनको छीले जाते हैं इस तरह से। ये देखिए आप, ये मेन है और ये मिट्टी के सतह के ऊपर जो है यहाँ पे इनको छीले जाते हैं। अब क्या होता है, डॉर्मेंट बर्ड्स विल प्रोड्यूस न्यू शूट्स इन द स्प्रिंग, ये जो डॉर्मेंट बर्ड्स हैं ये नए शूट्स को निकालते हैं। सॉइल इज माउंटेड ओवर द न्यू शूट्स एज दे ग्रो, जैसे ही शूट्स इस पर ग्रो होने वाले होते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर आप मिट्टी पूरी तरीके से माउंट कर देते हैं, पहाड़ उसके ऊपर पहाड़ की तरीके से माउंट की तरीके से उसको दबा दिया जाता है। और ये जो शूट्स, जो नए डॉर्मेंट शूट्स हैं, ये नए शूट्स डेवलप होते हैं इसमें, और वहीं से नए रूट्स भी डेवलप हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसके नए रूट्स डेवलप होने लगते हैं। एंड फिर जब ये पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, नए शूट्स भी आ गए इसमें, नए रूट्स भी आ गए, ये किन प्लांट्स में होता है, जो डॉर्मेंट होते हैं, ठीक है, जो अभी रुकी हुई है ग्रोथ, जिनकी डॉर्मेंट सीजन में ये किया जाता है।
और फिर इस पर्टिकुलर के प्लांट्स के, नए प्लांट्स के शूट और रूट जब डेवलप हो जाते हैं तो इनको अलग किया जाता है पेरेंट प्लांट से और इनको जो है नई जगह पे प्लांट किया जाता है। द लेयर्स आर रिमूव्ड इन डोरमेंट सीजन, इनको डोरमेंट सीजन में रिमूव किया जाता है। और इसमें ये जो एग्जाम्पल है इसका वो है एप्पल, रूट स्टॉक्स, मैग्नोलिया, गूसबेरीज, इस मेथड से इसको कल्टीवेट किया जाता है, प्रोपगेट किया जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ लेयरिंग एंड दैट इज यू कैन सी एयर लेयरिंग। अब ये एयर लेयरिंग एज द नेम सजेस्ट, आपको पता है नेम इसका आपको सजेस्ट ही कर रहा है कि जो शूट्स जो हैं ये एक स्पेशल टाइप की लेयरिंग है जिसमें ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स दे कैन नॉट बेंड। पिछले वाले में आपने देखा कि वो ब्रांचेस जो हैं वो बेंट हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे ब्रांचेस जो हैं वो जिसके ब्रांचेस मिट्टी में घुस के या मिट्टी तक रीच करके बेंट नहीं हो सकते, इन प्लांट्स में होता है, इन स्टेम्स में होता है या इस तरह के प्लांट्स में होता है। इसमें क्या किया जाता है, पीस ऑफ ब्रांच इज स्क्रेप्ड एंड कवर्ड बाय अ प्लास्टिक शीट टू प्रिजर्व मॉइस्चर। लेकिन उससे पहले क्या किया जाता है, आप इसमें देख लीजिए, ये जो ब्रांच है इसको एक पोर्शन से इस तरह से छील दिया जाता है, इसके चारों तरफ इसको छीला जाता है और इसको इसके इर्द गिर्द स्फैगमम लगाया जाता है मॉइस्चर के लिए, एक मॉज होता है एक तरह का, और इसको मॉइस्चर के लिए इसके इर्द गिर्द उसको रखा जाता है कि कॉन्स्टेंटली मॉइस्चर इस जगह को मिलता रहे। और इसके साथ उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर बैग या प्लास्टिक शीट कवर की जाती है ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो उड़ ना सके, इवापोरेट ना हो सके। और इस कट पोर्शन से रूट अराइज होता है, रूट अराइजेस फ्रॉम दिस पोर्शन आफ्टर फ्यू वीक्स। द ब्रांचेस आर डिटैच एंड ग्रोन। अब जहाँ से रूट्स निकल रही है वो ब्रांचेस वहाँ से डिटैच की जाती हैं, उसको ग्रो किया जाता है और नए प्लांट में वो डेवलप होता है। हर्बेशियस ट्रॉपिकल इंडोर प्लांट्स में ये चीज़ें दिखती हैं, या वुडी आउटडोर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये कैटेगरी है इन प्लांट्स की जिसमें एयर लेयरिंग बहुत अच्छे से किया जाता है। और एग्जाम्पल है रोडोडेंड्रॉन, कैमेलिया, अज़ेलिया, मैग्नोलिया, और कुछ फ्रूट्स और नट्स भी होते हैं लाइक एप्पल, पियर्स, पीचेस हो गए आपके एंड सिट्रस फ्रूट्स। तो इन प्लांट्स में आप जो लेयरिंग जो आर्टिफिशियल मेथड है वो लेयरिंग का मेथड है और इन प्लांट्स में आप करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज you will see grafting. So these were the type of layering, that is simple, compound, tip layering, mound layering and air layering. Now coming on to grafting. grafting में क्या होता है ये देखिए, this is a technique, अब इसमें देखिए, this is a technique that vegetatively joins two plants into one. इसमें दो कैटेगरी के प्लांट्स लिए जाते हैं, दो अलग कैटेगरी, प्लांट ए, प्लांट बी, ठीक है, और दोनों की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को ही यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड द रूट एंड बॉटम पोर्शन ऑफ वन प्लांट, जिसको आप रूट स्टॉक कहते हैं, उसको लिया जाता है और इसकी एक स्पेशलिटी होती है, इसको इसका रिटेंशन होता है, ये टफ होता है, इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, तो इस तरह के कैरेक्टर्स को लिया जाता है। और जो दूसरा प्लांट जो है वो जिसमें कि बहुत तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक फ्लावर का कलर हो गया, साइज हो गया, फ्रेगरेंस हो गया या फ्रूट हो गया, तो ये कैरेक्टर्स जिसमें बहुत अच्छे से होते हैं उस प्लांट के पोर्शन को लिया जाता है और उसको स्कियोन कहा जाता है। तो बॉटम पार्ट जो है वो एक अलग प्लांट का होता है जिसको स्टॉक कहते हैं या रूट स्टॉक कहते हैं, और अटैच टू टेंडर शूट जो स्कियोन है वो टॉप पोर्शन होता है, दूसरे प्लांट का वो होता है। और इनमें इस तरह का कट दिया जाता है, स्कियोन में स्टॉक में आप इस तरह का कट देते हैं और स्कियोन में ऐसा कट देते हैं कि वो इसके अंदर फिट हो सके। आप देख लीजिए यहाँ पे इस तरह की कटिंग आती है और ये फिट हो सके। नाउ वैक्स इज़ यूज्ड, अब ये इसमें पुट करके आप देखिए इसमें इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है और फिक्स करके उसको कवर किया जाता है। और किससे कवर किया जाता है, वैक्स। वैक्स इज़ यूज टू कवर द प्लेस ऑफ ग्राफ्टिंग और इसको कहते हैं हम ग्राफ्ट। Now scion and stalk are joined in such a way that their vascular systems are united. Vascular system, xylem, phloem, ये सिस्टम जो है इनका ये टिश्यू सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, इसका और इसका, इस तरह से उसको ज्वाइन किया जाता है। नाउ स्कियोन पार्ट हैज़ डिज़ायरेबल कैरेक्टर, जो ऊपर का पार्ट है उसमें वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं, और जो स्टॉक पार्ट है उसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, लाइक वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है जो इसमें नहीं है, और डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इसमें नहीं है लेकिन इसमें हैं।
तो इस तरह से इसमें दो प्लांट्स के कैरेक्टर्स को लेके उनको जोड़ा जाता है और ये एक इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ प्लांट इससे डेवलप होता है. दिस इज नोन एज ग्राफ्टिंग. यू विल सी दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन इज डन इन फ्रूट्स लाइक मैंगो. तो उसमें वैरायटी मिलती है. हर आप डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के साथ आप यहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं और यहाँ पे आपको इम्प्रूव्ड वैरायटी मिलती है. सो दिस वॉज ग्राफ्टिंग. Now coming on to another type of grafting and that is the bud grafting. ये बड ग्राफ्टिंग आप देख रहे हैं, ये भी एक तरह का ग्राफ्ट है. बड ग्राफ्टिंग को हम चिप बडिंग भी कहते हैं. यूजेज अ बड इंस्टेड ऑफ टिक. आपने उसमें देखा था कि यहाँ पे आपने एक पोर्शन लिया था, ट्विग लिया था मेन ग्राफ्टिंग में, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि एक बड लिया जाता है. ये देखिए एक पर्टिकुलर इसमें एक स्टॉक है और एक स्कियोन है, तो स्कियोन का जो पोर्शन है वो एक बड है. और ग्राफ्टिंग रोजेस को इस तरह से ग्राफ्ट किया जाता है, बहुत कॉमन है बड ग्राफ्टिंग रोजेस में. एंड यहाँ पे क्या किया जाता है, अ बड इज रिमूव फ्रॉम पेरेंट प्लांट जो डिजायरेबल कैरेक्टर है एंड द बेस ऑफ द बड इज इंसर्टेड बीनीथ द बार्क ऑफ द स्टेम ऑफ द स्टॉक. तो यहाँ पे स्टॉक के बार्क में जो उस स्टॉक का बड निकाल के उसमें टी सेक्शन दे के और नया बड जो है प्लांट बी से लिया जाता है जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टर और उसमें इसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है. ठीक है. एनी एक्स्ट्रा बड दैट स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम ऑफ द स्टॉक प्लांट इज रिमूव्ड. अब ये जो स्टॉक प्लांट है इसमें के इस बड के अलावा कोई और भी बड अगर ग्रो होने लगता है तो उसको हटा दिया जाता है. क्यों? क्योंकि हमें कैरेक्टर सिर्फ इस डिजायरेबल बड के चाहिए. दिस टेक्निक इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग स्प्रिंग. ये स्प्रिंग के टाइम में एम्प्लॉय किया जाता है, ये टेक्निक लगाई जाती है और ज़्यादातर रोजेस को इससे ग्राफ्ट किया जाता है. और बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं लाइक रोजेस है और फ्रूट प्लांट्स हैं, फ्रूट ट्रीज है लाइक पीचेस है, प्लम है, पियर्स है और सिट्रस है. So students, these were all the techniques, vegetative propagations that we did, that we saw, which are done artificially. And in next part, we will see artificial propagation done in form of tissue culture or micropropagation. So students, I hope you must have enjoyed, you must have learnt the basic things from this particular video. And we will meet in next lecture with the particular topic, that is micropropagation. So thank you. And students, if you have liked the lecture, so please share it and subscribe it and don't forget to press the bell icon. So thank you.